السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج میں ایک دیوبندی مفتی شاہ نواز دیوبندی کی گفتگو آپ کو سنواؤں گا۔ اس سے میں نے علم غیب کے تعلق سے بات کی اور بات ادھوری چھوڑ کے یہ بھاگا۔ یہ دیوبندی ہمیشہ بات ادھوری چھوڑ کے بھاگتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ بہرحال یا تو گالی گلوچ کرنے لگیں گے، بدتمیزی کرنے لگیں گے، یا پھر کال کاٹ کے بھاگ جائیں گے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کال کٹ کے بھاگ جاتے ہیں، جو بدتمیز ہوتے ہیں وہ گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ بہرحال میں بس اتنا ہی کہوں گا، اس پوری آڈیو کو، پوری گفتگو کو آپ ضرور سنیں۔ اور میں نے یہ آڈیو آج کسی مقصد سے بنائی ہے۔ میں نے ان چوزوں کے لیے بنائی ہے جو چوزے مجھے کال کر کے گالی بکتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لایانی باتیں کرتے ہیں، جن کو خود تو کچھ آتا جاتا نہیں، بس آ جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے، ایک ٹاپک یاد کر کے، ایک ٹاپک سبق یاد کر کے، ہے نا، ایک بات کو یاد کر کے آ جاتے ہیں، رٹ کے آ جاتے ہیں طوطے کی طرح، اور خواہ خواہ کی بحث کرتے ہیں، خواہ خواہ کی مجوری کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے پلٹ میں ان سے کچھ پوچھیں تو جواب نہیں دیتے۔ ایسے ہی چلے کے پلوں کے لیے آج میں نے دیوبندی مفتیوں کو ریمانڈ پر لیا۔ کئی ساروں نے کال نہیں اٹھایا۔ بہرحال ایک دیوبندی مفتی نے کال کیا، اس سے میری بات ہوئی، وہ بھی جو ہے آدھی ادھوری بات کر کے کال کاٹ کے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ آپ پوری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ حضرات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، دعا ہے۔ حضرت اس لیے میں نے کال کیا ہے جی حضرت کہ وہابی و دیوبندیوں کے جو ملا جی ہیں، جی یہ خود تو بات نہیں کرتے مگر اپنے ان چوزوں کو بھیجتے ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بے تہذیبی والی باتیں کرتے ہیں، لایانی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے چوزوں کو بھیجتے ہیں کال کرنے کے لیے، میرا نمبر انہیں بانٹتے ہیں، ہے نا۔ جی تو ایسے چوزوں کو سبق سکھانے کے لیے میں آج ان دیوبندی مفتیوں کو لائن پر لیتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ لائن پر جڑے رہیں ذرا، جی انشاءاللہ۔ اور میں ان چوزوں کو دکھاتا ہوں کہ نور حسن کا کتنا خوف ہے ان شیطانوں پر، ایک ایسے انسان کا جو علماء کی جوتی سیدھی کرتا ہے۔ جی جی بے شک صحیح بات ہے حضرت، سمجھے؟ جی حضرت، جو علماء کی جوتی سیدھی کرتا ہے، جب اس سے اتنا خوف ہے تو ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو مفتیان کرام ہیں، ان کا کتنا خوف ہوگا ان لوگوں کو۔ جی حضرت بالکل صحیح بات ہے۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ چوزے، یہ جو بدتمیزی کرنے آتے ہیں، اس بدتمیزی کرنے سے کوئی فائدہ تو نکلے گا نہیں۔ جی ہمارے جو سنی بھائی ہیں شاید وہ بھی تنگ آ گئے ہوں گے ان شیطانوں کی گالی سنتے سنتے، ہے نا۔ بار بار ایک ہی چیز سناؤ تو وہ اچھا نہیں لگتا، مگر ان کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے سنوانا بھی ضروری ہے کہ دیکھو یہ شیطان کیسے ہوتے ہیں۔ جماعت میں یہ گالیاں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو جماعت میں گالیاں سکھائی جاتی ہیں، ہاں بالکل سکھائی جاتی ہے ان کو۔ ہاں، ان کو رسول اللہ کی بے ادبی سکھائی جاتی ہے، رسول اللہ کی نفرت ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے جماعت میں لے جا کے۔ جی بہرحال نماز کے نام پر یہ ایمان لوٹنے نکلتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے، ایمان لوٹنے نکلتے ہیں۔ ایمان جو بھی ذرہ برابر باقی رہ جاتا اس کو چھیننے کے لیے لے کے جاتے ہیں نماز کے نام پر۔ جی صحیح بات ہے۔ میں ان دیوبندیوں کے مفتیوں کو کال کرتا ہوں، آپ بھی دیکھیں ان دیوبندیوں کے مفتیوں کو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جی لیتا ہوں لائن پر۔ جی حضرت۔
مفتی ہارون ندوی کو لگا رہا ہوں، یہ بہت بڑا فنٹر ہے ان کا. شاید میرا کال اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی پتہ نہیں، اس سے بات ہو چکی ہے میری. आपण ज्या व्यक्तीपर्यंत مفتی ہارون ندوی کو میں نے کال لگایا تھا پر اس نے اٹھایا نہیں. کسی اور کو لگاتا ہوں. آج یہ پوری آڈیو ایسے ہی سنواؤں گا. جی جی حضرت بالکل. مفتی شاہ نواز دیوبندی. आप जिस व्यक्ति को कॉल اس دیوبندی نے بھی دیکھو میرا کال نہیں اٹھایا. جی سمجھے حضرت؟ جی حضرت. ہاں، اب یہ کال نہیں اٹھائیں گے حضرت یہ لوگ. وہی دکھانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں تاکہ ان چلے کے پلوں کو ہوش آ جائے. اور یہ خواہ خواہ کی بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ ٹھیک تھوڑی ہے. یہ لوگ کیول بڑے بڑے دعوے کرنا بس جانتے ہیں، باقی ان کے ہاں. بات تھوڑی نہیں ہے کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں. ہاں، دیوبندی مفتی اجمل قاسمی کو لیتا ہوں. جی حضرت. आपण ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आहे. اس دیوبندی کا نمبر بند آ رہا ہے. اچھا. اور کوئی دیو کا بندہ ہے؟ مفتی طیب امروہے والے کو لیتا ہوں. جی. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है. اس کا بھی نمبر سوئچ آف ہے. سر کیا سوئچ آف بتلائیں گے؟ حالانکہ میں یہ کئی بار دکھا چکا ہوں، سنا چکا ہوں. اچھا، مفتی نسیم کو لیتا ہوں. اچھا، نظر محمد کو لوں؟ نظر محمد تو ویسے ہی نہیں میرا کال اٹھاتا. چلو لیتا ہوں نظر محمد کو جو مناظر دیوبند ہے. جی جی ضرور حضرت. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उन्होंने अपनी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड की हुई है. कॉल मिलने तक कृपया लाइन पर बने रहे. The person you're calling has forwarded the call to another number. Please stay online while call gets connected. इस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है. ارے یار، میں جب ان کو کال کرتا ہوں تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے. یہ لوگ نہیں اٹھائیں گے حضرت. چلو میں مفتی راشد دیوبندی دارالعلوم دیوبند میں جو پڑھاتے ہیں، جو وہاں ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ان کو کال کرتا ہوں. جی حضرت. आपके द्वारा डायल किया गया ना. یہ حالت ہے ان لوگوں کی، میرا نمبر دیکھ کے بھی نہیں اٹھاتے. یہ لوگ کال نہیں اٹھا رہے ہیں کوئی. کوئی بھی نہیں اٹھاتا. یہ ایک دو بار کا واقعہ تھوڑی ہے، بہت بار کا ایسا واقعہ ہوا ہے. ابھی دیکھنا جتنے لوگ کو آپ نے اچھا، کال آ گیا مفتی شاہ نواز کا. 1 منٹ. ہیلو. جی السلام. جی جی، مفتی شاہ نواز صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جی. اچھا اچھا جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ اچھا اللہ کا کرم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو 2-4 منٹ کا ٹائم ہے مفتی صاحب؟ جی جی بولیے. اچھا اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان. تقویۃ الایمان. جی جی جی. جی.
اس میں لکھا ہے کہ 5 غیب ایسے ہیں جو کوئی نہیں جانتا. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی اور عورت کے پیٹ میں کیا ہے, کون کیا کمائے گا, کیا کھائے گا. جی جی. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ تو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہی ہے. اچھا اچھا, کیا ہے حضرت, پڑھ کے بتائیں گے؟ تھوڑا سا رکیے, میں حافظ نہیں ہوں, آپ لائن میں رہیے 2 منٹ. اچھا اچھا, جی جی جی, میں آیت نکالتا ہوں آپ کو. جی جی. آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں نور حسن بول رہا ہوں. کون؟ نور حسن. نور حسن. کہاں سے؟ جی یو پی سے ہوں. یو پی. میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ شاید آپ کسی گروپ میں بات کر رہے تھے. اچھا, کسی گروپ میں ہوں میں؟ پتہ نہیں, ہاں کوئی ایک گروپ تھا کوئی, تو وہیں سے نمبر ملا تھا. اچھا 1 منٹ میں آیت نکالتا ہوں. جی جی جی. یہ جو آیت ہے کیا سنیے. جی 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 سنا, جی فرمائیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس. جی جی, اور پڑھیں. ماذا تكسب غدا. ہاں, یہ آیت کا ترجمہ ہے وہ. جی, اور پڑھیں, پورا پڑھیں. جلد دوپہر پلیٹفارم کرمانڈ 3 پر آ رہی ہے. اللہ اکبر. ہاں یہ لیجیے. ان اللہ عنده علم الساعة, یہ آیت ہے نا. ہاں ہاں ہاں. ہاں, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. جی. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جی. تو کیا پوچھنا ہے اس پر, آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہے کیا؟ ہاں ایک, اچھا یہ جو پیٹ کا بچہ ہے یہ غیب ہے نا؟ جی جی جی. اچھا اچھا, یعنی ما فی الارحام یہ غیب میں آئے گا. جی بے شک. اچھا اچھا. اور مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب فرما رہے تھے تذکرۃ الرشید, اس میں فتاوی رشیدیہ میں, جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے, وہ بے شک کافر ہے. اس کی امامت اور اس سے میل جول, محبت, موت سب حرام ہے. اچھا جی. کیا یہ صحیح ہے بات؟ آپ دیوبندی مسلک سے ہیں بریلوی مسلک سے؟ جی میں الحمدللہ سنی حنفی بریلوی ہوں. میں دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں ویسے. ہاں اچھا. تو جی جی جی. دیوبندی اور بریلوی میں جو اختلاف ہے یہ, تو یہ اختلاف میری نظر میں کیا بولیں گے, حقیقی اختلاف سے زیادہ لفظوں پر مطلب بحث ہو گئی ہے. نہ نہ نہ, میرا نہیں, پوری بات سمجھ. ہاں میری پوری بات سمجھ. جی جی فرمائیں. ارے میری ٹرین بھی آ گئی ہے ابھی. 2 منٹ رکے, میں ٹرین میں بیٹھتا ہوں. ہاں ہاں ہاں. جی جی جی. प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आलेली लोकल विरारला जाणारी 12 डब्यांची जलद
भाषा बांगलाते अंधेरी, अंधेरी से बोरीवली, बोरीवली से भाईंदर, भाईंदर ते वसई, वसई ते विरार या स्थानकांदरम्यान कुठल्याही स्थानकांवर थांबणार नाही. जी मोहतरम. जी जी जी. हाँ, उसमें क्या हुआ है, मैंने जो मुताला किया दोनों तरफ का, जी मुझे नहीं लगा कि ये दरअसल कोई इख्तलाफ है दोनों में, जी. लेकिन माजी में तशद्दुद इस पर जाहिर है कि इस मसले पर बहुत हुआ है. हाँ. तो जैसे मेरा आपने ये आयत पढ़ी है. जी हाँ जी. लेकिन पूरी बात मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप फिर सवाल करिएगा. तो मुताला ये कहता है कि भाई चाहे देवबंदी मसलक हो चाहे बरेलवी मसलक हो, जी अल्लाह तबारक व तआला का जितना इल्म है, जी इल्म इत्तिकाद, इल्म गैब, जी ठीक है, जी जाहिर है कि किसी को भी अल्लाह के अलावा और किसी को भी उतना इल्म नहीं है. बेशक सुभान हम अल्लाह. नहीं करते हैं. ये मतलब के बरेलवी भी इसी के कायल है. बेशक बेशक माशाअल्लाह. समझ जी रहे हैं बात को? जी अब इसी बेस पर फिर एक इख्तलाफ हो गया. वो इख्तलाफ क्या हुआ कि आलिमुल गैब कहना गैरुल्लाह को जायज है या नाजायज है. समझ जी. रहे हैं आप? हाँ, गलत है, हमारे उलमा नहीं कहते. आप मेरी बात समझ लीजिए, फिर मैं आपको सुनता हूँ. जी तो आलिमुल गैब कहना गैरुल्लाह को जायज है या नाजायज, इस लफ्ज का इस्लाम. ठीक है. जी. हाँ, मना किया है हमारे उलमा तो ने. हाँ, तो देवबंदी हजरात कहते हैं कि आलिमुल गैब जो है सिर्फ अल्लाह के साथ मखसूस है, ये लफ्ज बेशक. अल्लाह के सिफात खासा में से है. जी जी और बरेलवी हजरात में से आप तो बोल रहे कि मना करते हैं, लेकिन कुछ हजरात कहते हैं कि भाई आलिमुल गैब का लफ्ज है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बोला जा सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे ज्यादा इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है. ठीक है. अच्छा, वो कौन से बरेली मौलाना है, थोड़ा सबूत और दलील के साथ बात होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा. आलिमुल गैब जी, किस उलमा ने कहा है, कौन सी किताब में कहा है, कौन सी तकरीर में कहा है? अक्सरियत तो इसी बात के कायल है ना भाई. नहीं, आलिमुल गैब नबी अच्छा. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए. हाँ, जब अक्सरियत इसी पर, जब अक्सरियत, मैं कोई खिलाफ करने के लिए आपसे नहीं आया हूँ. नहीं, यहाँ बात हो रही है सिर्फ इस्लाही तौर पर. मैं ना तो आपको नीचा दिखाना चाहता हूँ, ना आपसे झगड़ा करना चाहता हूँ. प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह बात होगी. हाँ जी. हाँ, मैं जो बात कहूँगा हजरत, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा. जी. पूरी आप सुनते चलिए. वो ये है कि हजरत इमाम क्या बोलेंगे अहमद रजा साहब ने जो तर्जुमा किया है, हाँ हाँ नबी से किया है जी जी जी. नबी लफ्ज नबी का जो तर्जुमा किया उन्होंने, कहीं भी लफ्ज हाँ नबी हाँ आया हाँ जी कुरान में, हाँ या अय्युहन नबी, तो हाँ. नबी का तर्जुमा उन्होंने किससे किया? गैबदार रसूल. जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह. गैब का जानने वाला जी क्या जी है ना. जी और नबी का तर्जुमा देवबंदी मसलक वालों ने गैबदार रसूल से नहीं किया है. जी, बल्कि नबी का तर्जमा नबी से ही किया है. जी जी, नबी का तर्जुमा नबी से किया है. हाँ, ये नबी आप के तो मुफ्ती है. ये नबी जो लफ्ज है ये बना किस चीज से है? ये नबी लफ्ज का तर्जमा आता क्या है? खबर देना. नबा यम्बो. हाँ, तो खबर जब ही देगा ना जब उसको इल्म होगा किसी बात का. हाँ, तो वो उधर मैं नहीं जाना. बगैर इल्म के थोड़ी खबर दे देगा आदमी. आप पहले पूरी बात. हाँ, बात ये है कि कहने का मेरा मकसद ये आप पूछ रहे थे ना भाई कि हमारे कौन से देवबंदी बरेलवी ने कह दिया है कि. अच्छा चलिए, बात लंबी हो जाएगी ऐसे, बस शॉर्टकट में मैं बात को खत्म कर देता हूँ. भाई मैं आपको साबित कर रहा था कि भाई आलिमुल गैब का इतलाक देवबंदियों के यहाँ अल्लाह के अलावा और किसी के लिए जायज नहीं है. ठीक है. और बरेलवी हजरात के यहाँ अल्लाह के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आलिमुल गैब का लफ्ज का इतलाक जायज है. अच्छा, किसी बात को कायल है. अच्छा, वो कौन से आलिम हैं, वो कौन से आलिम हैं जिन्होंने हुजूर को आलिमुल गैब कहा है? उनका नाम बता दीजिए और उनका वो कौल बता दीजिए कि उन्होंने कौन सी किताब में कहा है. हाँ, तो ये जो आप पूछ रहे हैं जाहिर है किसी मुनाजिर का काम है. मैं भी उसका मेरे देखिए, बात वो अच्छी रहती है जो
सच हो और सही हो। मैंने तो आपको कहा ना, अहमद रजा खान ने तर्जुमा अच्छा चलिए, कर दिया। हाँ तो वो देखिए तर्जुमा करा तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हमारे आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात से ज्यादा इल्म अता किया है अपने बाद। हाँ बेशक, इसमें कोई शक तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बहुत सारे छुपे हुए खजानों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता किया है कि नहीं हजरत? लेकिन वो इल्म अल्लाह से कमतर है या अल्लाह के बराबर है? हम तो अल्लाह के बराबर नहीं मानते ना भाईजान, हमने कब कहा कि ये इल्म अल्लाह के बराबर है? हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देवबंदी और बरेलवी में दरअसल इख्तिलाफ ही अच्छा नहीं है। सुनिए, जैसे आपने कहा अल्लाह से कमतर मानते हैं और बाकी से सबसे ज्यादा मानते हैं। हाँ, मेरी बात सुनेंगे मुफ्ती साहब के नहीं आप? मुफ्ती साहब जी जी जी, माशाल्लाह आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और बड़े सुकून के साथ आप बात कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भी बात सुनेंगे और जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। जी। तो जैसे एक तरफ दरअसल ये आप जो बोल रहे हैं मुझको किताब से बताओ, तो मैं इस वक्त चलिए वो आप मत बताइए, वो तो मुझे मालूम है, आप नहीं बता पाएंगे इंशाल्लाह, और ये कयामत आ जाएगी तब भी नहीं बता पाएंगे। एक आयत मैं पढ़ता हूँ यही वाली, आप ऐसा मत बोलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुत मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा व ला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। इसके आगे और भी आयत है ना, ये यही तक छोड़ दिए इन्होंने, यहाँ इसमें यही है। बहरहाल हाँ चलिए यार समझ गया मैं जी। हाँ, तो इस आयत का जो इन्होंने ट्रांसलेशन लिया है वो यहीं तक लिया है, और अल्लाह ताला ही के पास हैं गैब की कुंजियां, खजाने, उनको कोई नहीं जानता बजुज अल्लाह ताला के। क्या बजुज अल्लाह ताला के, यानी अल्लाह के बगैर बताए। हाँ जी मैं समझ रहा हूँ, आप बोलते चलते। और वो तमाम चीजों को जानता है जो कुछ खुशकी में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पता नहीं कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसको भी जानता है, और कोई दाना जमीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई तर और ना कोई खुश्क चीज गिरती है मगर ये सब किताब मुबीन में है, यानी इस कुरान पाक में है ना। अब ये जो यानी लगाए ना आप यहाँ पर जी, ये जो यानी लगाए ना आप, यानी कौन सा यानी किताब कुरान मजीद में? मैंने कहा ये सब किताब मुबीन में है, यानी तो मैंने कहा यानी इस कुरान पाक में, इस किताब में जी। तो किताब मुबीन से मुराद कुरान पाक है ना जी? किताब मुबीन से मुराद क्या है, कुरान पाक है या कोई और किताब है? हाँ, अब इसकी तफसीर आप देखिए क्या है। ये जो यानी कहा है ये मैंने बोला है। हाँ ये आप बोल रहे हैं ना, ये मैंने बोला है, किताब मुबीन यानी कुरान पाक। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, समझ रहे आप जी, कुरान करीम के अलावा भी, हाँ समझ रहे थे, हाँ हाँ, कुरान करीम के जी अलावा भी हाँ, लौहे महफूज में अल्लाह ने पूरी दुनिया की तकदीर और उसकी इजमाल और तफसील सब अल्लाह ने लिख लिया कि नहीं लिखा है? बेशक सुभान अल्लाह, मगर कुरान पाक को हर कोई देख सकता है ना, पढ़ा लिखा भी देख सकता है, गैर पढ़ा लिखा भी देख सकता है, मगर लोहे महफूज को सिर्फ अल्लाह का वो काबिल बंदा देखेगा जो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार है। जो फर्श जमीन पर आंखें बंद करके लोहे महफूज देख लेता है वही लोग देख सकते हैं। यार हमारी औकात नहीं है हजरत, नहीं आप मेरे ख्याल से तो शायद अगर आप इतने पहुंचे होंगे तो आप देख लेंगे, मगर मुझे लगता है कि शायद आप भी लोहे महफूज को ना देख सके। आप बात तरीके से करो, क्या लगा फिर आप आपने बोल सके आप पहुंचे हुए होंगे। अरे भाई आप हाँ, अगर आपको उतना इल्म होगा, आप अल्लाह की मोहब्बत में इतने सरशार होंगे
اتنے ڈوبے ہوئے ہوں گے تو شاید اللہ تعالیٰ نے وہ ولایت کا مقام آپ کو عطا کیا ہو جو آپ لوہے محفوظ دیکھ لیں، مگر لوہے محفوظ دیکھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، اگر ہے تو آپ جواب دیں۔ اچھا جی، ہر کسی کا کام تو نہیں ہے نا لوہے محفوظ کو پڑھ لینا۔ ہاں ظاہر ہے، چلیے۔ ہاں، تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ایک بات کہنا چاہوں گا کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کے لیے ہر ایک کمال کو، ہر ایک بات کو ان کی تسلیم کر لیتے ہیں، مگر ہمارے نبی کے لیے کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے غوث اعظم یہ جانتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، یا ہمارے نبی کو اس بات کا علم ہے کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، تو وہابی دیوبندی اس بات کو نہیں مانیں گے اور قرآن کی آیت پیش کر دیں گے۔ اچھا جی جی جی، اور پھر دوسرا حوالہ پیش کر دیں گے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے کہا ہے، لکھا ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے، سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے، وہ بے شک کافر ہے، اور اس کی امامت اور اس سے میل جول، محبت، موت سب حرام ہے۔ تو یہ آپ اب تھوڑا رکیے، آپ کا دو سوال ہوا۔ نمبر ایک، علماء دیوبند اپنے بزرگوں کے لیے علم غیب مانتے ہیں اور غوث پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مانتے، ایک سوال۔ جی، دوسرا سوال، اگر اللہ کے برابر کوئی علم مانے نبی کے لیے تو وہ کافر ہے، رشید احمد گنگوئی کے حوالے سے آپ نے کہا، جی ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ تو ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بھی کہا کہ اللہ کے برابر نبی کا علم نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو پیٹ کا بچہ ہے واقعی اگر کوئی نہیں جانتا۔ نمبر دو، پیٹ کا بچہ، یہ تو ضمنی بات ہے، اصل یہ تھا کہ بھائی علماء دیوبند اپنے علماء کے لیے تو مانتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے بھائی کہ علماء دیوبند جو ہے کرامت کے منکر نہیں ہے، بات آپ سمجھ رہے؟ اچھا، کرامت بڑی ہے یا معجزہ بڑا ہے مفتی صاحب؟ وہی تو میں بول رہا ہوں، کرامت کے جب منکر نہیں تو معجزہ کے کام منکر ہوں گے؟ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب جو کچھ بھی ہے، ما فوق البشر جو بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی، لیکن وہ معجزہ جتنا بھی بڑا ہے، بہرحال وہ علم معجزہ کے ذریعے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ اللہ سے کمتر ہے۔ اللہ کا علم سب سے بڑا ہے، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نبی کے علم کے سامنے، ماشاء اللہ، نبی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے عام انسان تو چھوڑو، دیگر انبیاء اور اولیاء ان کا علم ایسے ہی جیسے کہ سمندر سے کوئی سوئی ڈالا جائے سمندر میں اور اس کے نوک میں علم آ جائے، تو نبی کا علم سمندر ہے بلکہ اس سے زیادہ، اور باقی کا علم یہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے بھی ٹھیک ویسی مثال ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی، آپ کی بات سن کے میرا دل باغ ہو گیا بہت۔ میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف جو ہے نا لفظی حد تک ہے، بہت زیادہ وہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے ہمارے نبی کو اس بات کا علم اللہ تعالیٰ نے، میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے محترم، میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے، سنیے بس، دیکھیے لاسٹ آ گیا، دیکھیے نا، آپ بات کر کے ادھورے راستے سے جائیں گے نا تو اچھا نہیں لگے گا۔ مانتے ہیں جب دونوں طرف والے اس بات کو مانتے اچھا، ہمارے نبی کو اس بات کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نہیں؟ بھائی جان دیکھیے، اب آپ میری بات نہیں سن رہے ہو، اب آپ میری بات نہیں سن رہے، مزہ نہیں آ رہا۔ دیکھیے سنیے نا، جب اتنا وقت دیا تو تھوڑا سا وقت اور دیں، آپ تو ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے ٹرین میں بیٹھ کے میں اتر بھی گیا ہوں، لوکل میں چل رہا ہوں بمبئی میں۔ اچھا، تو سنیں نا ایک منٹ بھائی، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، بڑی مہربانی ہوگی، سنیے نا، سنیے تو۔ دیکھیے میرا دعویٰ تھا، اب آپ اس دعوے کو میرا غلط ثابت کرتے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میرا دعویٰ یہ تھا کہ دیوبندی حضرات اپنے بزرگوں کے لیے ہر ایک کمال تسلیم کر لیتے ہیں جو ان کے اندر نہیں بھی ہو، مگر رسول پاک کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جب یہ آیت، سنیے تو، جب یہ آیت بتا رہی ہے، کمالات تسلیم کرتے، میں وہی تو بتا رہا تھا آپ کو۔ دیکھیے سنیے تو، اچھا، نبی کے لیے جائز لیکن اس پر اختلاف ہے۔ ما فی الارحام کا علم دنیا میں کسی بندے کو ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا۔ دیکھیے کرامات اور معجزات کا اگر استثناء کر لیا جائے پھر نہیں ہے، تو پھر یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ ان لوگوں کو آپ تھوڑا سا ایک ذہن دے دیں جو دیوبندی حضرات اس پر بحث کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ جو یہ کہتے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا مشورہ دے دیں، ان کو تھوڑا سا نا
एक जहन दे दें उनको। मशवरा देने की जरूरत है। मैं भाई तो बोल रहा हूँ कि भाई जो करामात और मोजज़ात है ये अलग खाना है। ये यानी अल्लाह की अता से जानते हैं ना, नबी और नबी रसूल अल्लाह के वली, ये जिसको अल्लाह ताला बता दे कि फला औरत के पेट में लड़की है या लड़का है, जिसको अल्लाह ताला अता कर दे अल्लाह की अता से। करामात को समझिए पहले, हर वली हर वक्त बाकरामत हो, और करामत का मतलब ये कि कश्फ वाला मामला उसके साथ हो, ठीक है। हाँ। करामत का ये खाना। हाँ। और हर रसूल हर वक्त उसके साथ हर मामले मौजज़ा वाली चीज अता की गई, ऐसा तो नहीं है ना। मौजज़ा कभी कभी, मगर उलमाए देवबंद के जो बुजुर्ग हैं, उलमाए देवबंद के जो बुजुर्ग हैं, उनका यही मामला है कि जब भी कोई बंदा उनसे ताबीज लेने जाता तो वो बता देते थे जा तुझे लड़की होगी या लड़का। आप अगर जिस बुजुर्ग के बारे में बोलेंगे ना, चंद वाकयात साबित हो सकते हैं, बात समझ रहे आप। और वाकयात थानवी जी इस पर मोहर लगा रहे हैं, थानवी जी इस पर मोहर लगा रहे हैं। ठीक है, मैं यार बिजी हूँ अभी, प्लीज आप बात नहीं करेंगे, बताइए। देखिए आधी बात छोड़ के भाग रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं, आप 2 मिनट टाइम लिए। अभी देखो ना, टाइम मेरा काम। आपने बात को बढ़ाया, मेरी बात आपने सुनी कब? आपने बात को तवील किया, मेरी बात नहीं सुनी। मेरी बात ये थी, आपको फोन पे लगाया था, बाद में बात करता हूँ। अरे भाई क्या यार, आधी अधूरी बात छोड़ के जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। ये मोहम्मद रजा भाई ये तो भाग गए आधी अधूरी बात छोड़ के, ये समझ गए कि मुझे कहाँ टांगने वाला है। अच्छा, भाग गए क्या फोन काट के? हाँ हाँ हाँ, ले जाए। बताइए, इनके मुफ्ती जब बात नहीं कर सकते हैं तो ये चिल्ले के पिल्ले यार मुझे कॉल करके गालियां बकते, बदतमीजी करते। बताइए, ये लोग अभी खुद ही कह रहा था, बात में लोग भाग जाते हैं। अभी ये बंदा खुद ही कह रहा था कि कुरान की आयत है, वो तो कुरान की आयत है, वो आयत भी पढ़ के बताई। और उसने कहा कि हाँ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आप कह दिया कि हम, जब मैंने ये बता दिया कि देवबंदी हजरात अपने बुजुर्गों के लिए सब चीज तस्लीम करते हैं मगर अंबिया औलिया के लिए नहीं करते, तो आप कह रही है कि हम करामत को हक मानते हैं, करामत का हम इनकार नहीं करते। अब इससे मुसलमान क्या फैसला करेंगे? यानी इसका कहने का मतलब यही है कि अल्लाह ताला जिसे बता दे वो जान लेता है, और उस आयत का भी मफहूम वही है। लास्ट में जो है इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, जी अल्लाह ताला जानने वाला है और बताने वाला है। बेशक बेशक, अल्लाह ताला खुद भी इल्म रखता है, खुद भी जानता है, और अपने जिस महबूब बंदे को बताना चाहे बता सकता है, उसको उस चीज का इल्म अता कर सकता है। जी सही बात है। तो हम तो हर एक चीज, हर एक इल्म अल्लाह की अता से ही मानते हैं ना। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। करामत और मौजज़ा ये वो चीजें हैं जो लोगों की अकल में ना आवे, अकल में ना आवे, सही बात है। समझे? और इसने इकरार कर लिया कि हम बुजुर्गों की करामत के कायल हैं। तो जब बुजुर्गों की करामत का कायल है तो फिर नबी के मौजज़े का कायल क्यों नहीं? जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही कहते हैं कि नबी नहीं जानते कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का। जी समझे? ये तो भाग गया। इस पर बहुत सारी, अच्छा इन देवबंदियों का हर एक मौलवी अलग अपनी चाल चलता है, अपनी बात हर अलग करता है। हर एक ऑडियो में आप देखोगे तो कोई कुछ कहता मिलेगा, कोई कुछ कहता मिलेगा, कोई कुछ कहता मिलेगा, कोई कुछ कहता मिलेगा। समझे भाईजान? जी हजरत। अब बताइए कि जब अल्लाह ताला ने ये 5 इल्म किसी को अता नहीं किए, किसी को नहीं दिए, तो फिर उलमाए देवबंद के बुजुर्ग अब्दुल्ला राजपूत को कैसे बता दिया? है ना? जी सही कहा हजरत। मतलब इनके बुजुर्गों से जो हो वो इनके नजदीक जायज है, वो सब ठीक है, वो सब दुरुस्त है, और जो अंबिया इकराम से हो वो इनके नजदीक वो गलत है सब, वो गलत है सब। हाँ, क्योंकि इनका बाप रशीद अहमद गंगोही कहता है ना यहाँ कि जो अल्लाह जल्ला शानू के सिवा इल्म गैब किसी दूसरे को साबित करे। तो मैंने जो इससे पूछा कि ये जो पेट का बच्चा है ये गैब ही है ना, तो बोले हाँ गैब है। तो जब गैब है तो फिर ये वो 5 गैब हैं जिनको अल्लाह ताला ने किसी को अता नहीं किया, और भाग गया, ये फंस गया ना। इसने समझ लिया कि यहाँ इसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसी वजह से ये भागा। बहुत चतुर चालाक है ये लोग ऐसे ही करते हैं, जब ये जहाँ पर फंसते हैं वहाँ पर ये कॉल कट करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। हाँ, इनको ये सिखाया जाता है।
इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जहाँ फंसो वहाँ कॉल काट के भागो। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, ये कॉल करके मतलब अपनी तरफ से कट करके भागते हैं हजरत। बड़ी शर्म की हाँ बात है यार। जी जी, शर्म। देखिए हजरत, समझ रहे हैं इस बात को, जिस बात का जवाब ना हो वहाँ यही आसान काम है कि कॉल काटो और भागो। और थानवी इस पर कहता है कि जो आप बतला दिया करते थे वही होता था। अच्छा अच्छा, यानी जो आपने बताया उसके बरक्स कभी ना हुआ। थानवी जी का इल्म गैब तो मानते हैं ये लोग, है ना? अरे भाई ये खुद बता रहा है, थानवी ने गवाही कर दी, मोहर कर दी इस पे, और जो आप बतला देते थे वही होता था। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ एक बार भी इसके कहने के मुताबिक कि बताया हो लड़की और हो गया हो लड़का जी, या लड़का बताया हो लड़की हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। कहता है कि जो आप बतला देते थे वही होता था। वही होता था। अगर लड़की भी हुई और लड़का बता दिया तो लड़का ही हुआ, इसका ये मतलब आता है। जी। या फिर उसको इतना वो था जी। अच्छा, दूसरी बात, इन देवबंदियों ने उससे पूछा कि हजरत आप ये कैसे बतला देते हैं, तो पता है क्या बोलता है? जी। कहता है क्या करूं, बेमुहाबा मौलूद की सूरत सामने आ जाती है। हाँ, यानी उस बच्चे की सूरत, समझे? मतलब थानवी जी को ये गैब कहाँ से हासिल हुआ? वो इनका खुदा है ना, ये क्या नाम है, मुर्तजा हसन दरभंगी है, कौन है वो? अच्छा अच्छा अच्छा, है क्या इनका खुदा? वो हुसैन अहमद मदनी। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका खुदा है। वो इनकी गलियों में जो है चलता फिरता था, इनकी खैर खबर लेता था, समझे? वो वीडियो भी बना के डाल चुका हूँ मैं कई दिनों पहले, महीना भर पहले की वीडियो है। मतलब इन लोगों ने सब कुछ अपना अपना अलग अलग बना रखा है। हाँ, देवबंदियों का खुदा कौन, ये उसका टाइटल है। हाँ, अभी देवबंदी के नबी भी डाल देना, फिर उसके बाद देवबंदियों का औलिया भी डाल देना कि देवबंदी के नजदीक औलिया कौन होते हैं। बस यही चीज, हाँ यही चीज खुलासा करना मेरा मकसद रहता है कि मैं बता दूं अपने अवाम अहले सुन्नत को, जो इन शैतानों को सही मानते हैं, जो सही समझते हैं, हमारे नबी के लिए कोई कमाल तस्लीम नहीं करते। अगर मैं शुरू से कहता कि हमारे नबी को अल्लाह ताला ने गैब अता किया कि नहीं, तो ये डायरेक्ट मना कर देता। मगर मैं इसको वहां से पकड़ के लेकर आया जहां से ये इनकार नहीं कर सकता था, और इसने वाकई कहा कि हाँ वो कुरान की आयत है, और वो आयत भी पढ़ी तो उसने पूरी नहीं पढ़ी। हाँ, बहरहाल तो ये दूसरा भी हवाला मैंने बताया। जब कुरान में है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई ये 5 गैब नहीं जानता, तो भाई ये कुरान का जो फरमान है तो ये तो इनको अटल मानना चाहिए था ना। जी बिल्कुल सही बात है। मगर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जानने वाला और बताने वाला है। सही बात है। अल्लाह की अता से अल्लाह के महबूब बंदे भी जान लेते हैं। बेशक सही बात है। तो इसको मना करते हैं, कहते हैं अरे बरेलवियों, तुमने रसूलुल्लाह को खुदा से मिला दिया और खुदा के बराबर कर दिया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। जी भाई इसमें बराबरी कहाँ हो गई? और वो मेरी बात सुन के भी नहीं गया। मैं उसको बता रहा था अताई में और जाती में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है जी हजरत। भाई जाती होता है और अताई अताई होता है। जाती और अताई में बराबरी कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? नहीं हुई ना बराबरी। बिल्कुल नहीं हजरत, बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तो ये अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, देव के बंदे ये इतने बड़े हरामी हैं कि अपनी बात को सीधा करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो जो मिसाल देते हैं लोग, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भान बते ने कुरमा जोड़ा, और क्या क्या बोलते पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे, समझे? जी हजरत। और ये समझ गया कि हाँ ये कहाँ लाके मारेगा। हाँ, इसीलिए तो फोन काट के भागा ना, ये इसीलिए कॉल काट के भागा। इनकी औकात नहीं है ये लोग बात कर सके। और इनके चिल्ले के पिल्ले साले बदतमीजी करते हैं, कॉल कर करके गालियां बकते हैं, वो ठीक नहीं लगता। मैं भी बदतमीजी करूं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना यार। हालांकि मैं खुद एक बहुत बड़ा, मैं खुद भी बदतमीज हूँ, मैं महा बदतमीज हूँ, मगर चाहता हूँ कि ये सब काम मुझसे ना हो तो अच्छा है, बेहतर है, पहले की सारी आदतें छूट जाएं।
मगर ये पुराने वाले रास्ते पे मुझे लाके खड़ा करना चाहते हैं। अरे हजरत, आप इन लोगों को मुंह ना लगा करें ज्यादा, इन पिल्लरों के इनके मुफ्तियों को पकड़ें आप, जो बड़े हाँ, बड़े हैं। इसीलिए मैंने आपको लाइन पर लिया और मैंने इनके मुफ्तियों की औकात दिखाने के लिए जो है ये सोचा था, ये रास्ता निकाला कि मैं किसी एक अपने सुन्नी भाई को लाइन पर लूं और इन शैतानों की शैतानियत का जो है चेहरा बेनकाब करूं, इनका ओरिजिनल चेहरा मैं दिखाने की कोशिश करूं। हाँ, इनके मुफ्तियों को हजरत ज्यादा पकड़ करें ये लोग। अब ये हमारे सुन्नी भाई फैसला करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्या सही है क्या वो खुद ही आयत पढ़ रहा था कि कुरान की ये आयत है। जी। हाँ, जब कुरान की वो आयत है तो फिर उस आयत को जिस तरह है वो उस तरह मानते क्यों नहीं? हम अपने नबी के लिए अगर कह दें तो कहते नहीं नहीं, अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं। बहुत सारी मेरी ऑडियो इल्म गैब पर पड़ी है, तो उसमें सुनना, कोई देवबंदी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और इसने एक दावा किया था, हाँ, दावा ये था कि बरेलवी उलमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानते हैं। उस दावे पे दलील ही नहीं दे सका। अच्छा, यही था जो ये फोन पे बात कर रहा था। हाँ, यही बोला था ना कि बरेलवी अक्सर उलमा की अक्सर तादाद, बरेलवी उलमा की अक्सर तादाद, यानी अक्सर उलमा यानी बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं। तो मैंने कहा किसी एक का नाम बताइए, उस किताब का नाम बताइए। जब अक्सर तादाद में जब इसने पढ़ा होगा तो फिर सबूत भी पेश कर सकता था ना। इसके बाद में इसको ये बात साबित करनी चाहिए ना। हाँ, देखिए यहाँ इसके लिए मेरे पास जवाब था, मगर जवाब मैंने इसलिए नहीं बोला, मैं इसके ऊपर सवाल खड़ा करता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और रहमतुल लिल आलमीन है या नहीं। ये कहता कोई नहीं, तो मैं कहता उलमाए देवबंद का अकीदा है, नजरिया है कि हुजूर के अलावा भी कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है। ये तो इनका नजरिया, इनका अकीदा, और मैं साबित करता इस बात को, मगर मैंने कहा यार टॉपिक बदल जाएगा, इसलिए मैंने नहीं छेड़ा उस बात को। समझे भाईजान? जी हजरत। बहरहाल जिसकी किस्मत में हिदायत होगी, जिसकी किस्मत अच्छी होगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑडियो को सुनकर फैसला कर लेंगे। बस इन शैतानों की शैतानियत दिखाना मेरा मकसद रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ उस वक्त तक इनको बेनकाब करता रहूंगा, इसी तरह नंगा करता रहूंगा, इनके मुफ्तियों को भगाता रहूंगा इंशाअल्लाह। कम से कम इनको ये तो एहसास होना चाहिए कि हम मुफ्ती होकर के एक तालिब इल्म में से, बरेलवी के एक तालिब इल्म हाँ, से जो है मतलब वो बात नहीं रख पा रहे हैं अपनी, और बात इनकी खुद फंस जाती है। जो बात करते हैं खुद ये फंस जाते हैं। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फंसते हैं तो फोन काट के भागते हैं। मैं एक ऐसा गुनहगार इंसान हूँ कि उलमा की जूतियां सीधी करने वाला हूँ। तो जिन उलमा ने इल्म हासिल किया है, जो हमारे आलिमों ने मदरसे में वक्त दिया है, जिन्होंने इफ्ता हासिल किया है, ये चिल्ले के पिल्ले उनके सामने क्या बैठ पाएंगे? हैं? आलिम तो बहुत दूर की बात जब एक तालिबे इल्म के सामने ही बात नहीं कर पा रहे हैं, जी, एक उलमा की जूतियां सीधी करने वाले से बात नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे जो बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके चेहरे को देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, ईमान ले आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर उनसे क्या बात कर पाएंगे ये लोग? सही बात है, सही बात है। चलो हजरत ठीक है फिर, है ठीक है। इस मुफ्ती का चेहरा बेनकाब करना था। बहरहाल कई लोगों ने उठाया नहीं, इसने उठाया, इसने किया कॉल, तो ये बीच में से रास्ता काट के भागा कि नहीं भागो, फंस गए। इसका नंबर जरूर डाल देना हजरत। हाँ ठीक है, नंबर डाल दूंगा। अब आज के बाद ये मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही बार कोई भी देवबंदी मुफ्ती एक बार अच्छे से बात करता है, हाँ, दोबारा में फिर गाली अपनी अशरफ अली थानवी की सुन्नत अदा करने लगता है गालियां दे करके। हाँ, जालिम जलालाबादी के अमल पर उतर आता है। वो जानता है कि मैं मतलब इस बात को मतलब साबित ना कर सकूंगा, तो अपनी क्या बोलते हो हसद निकालने के लिए, हाँ, जो इसके दिल में पूरी हसद भरी हुई होती है, वो गालियों से निकालती है। हाँ, अपने दावे की दलील ही नहीं दे सका ये बंदा, और क्या दे पाएगा? ये लोग झूठ बोलते हैं, अगर ये लोग झूठ ना बोले तो धर्म नहीं चलेगा। इसने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, कि बरेलवी उलमा हुजूर को हुजूर को जो है आलिमुल गैब मानते हैं। मैंने कहा है एक हवाला पेश करो, ये एक भी नहीं कर सका।
ना फोन काट के भाग गया कभी सही और फोन काट के भागा, क्योंकि ये जान गया ये आलिम है, मुफ्ती है, तो जब मुफ्ती है तो इसको तो इतना होश है जब बात करता है। भाई दावे पर दलील तो होनी चाहिए ना, दावा आप कर रहे हैं तो दलील आपके पास होनी चाहिए। जी, हाँ, तो जब दावे की दलील नहीं पेश कर दावा सका। क्यों करते हो? जी दावा कर लिया, दलील नहीं पेश कर पाया, फोन काट के भागा, हाँ। शिकस्त तो हुई। और देखिए मैं खामोश रहा, जब ये बोलने लगा तो मैंने कहा मुझे भी बोलने का मौका देगा, मेरी भी बात का जवाब देगा, मगर ये मेरी बात को सुन के भी नहीं गया और जवाब दे के भी नहीं गया। जी हाँ, बहरहाल इसको मालूम था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर थानवीर, नौतविया, मेडवी, गंगोही ये सब के सब काफिर हो जाएंगे। इसीलिए भाग गया। हाँ। सोच रहा होगा कि फोन काटने में भलाई है। हाँ, एक बार एक देवबंदी मुफ्ती ने मुझे कहा कि तुम कहते हो कि देवबंद के चारा काबिर काफिर हैं, तुम किसी एक देवबंदी आलिम को काफिर साबित करो, मैं 10 लाख का इनाम दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसी के मुंह से काफिर साबित करा दिया। मैंने कहा ला 10 लाख रुपए। नहीं दिया होगा, पैसे लेके भाग गया होगा। वो ऑडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। शानदार गुफ्तगू हुई थी। और बाकी इसके देव के बंदर अभी और करेंगे, जिनको कॉल किया होगा ना पक्का लोग करेंगे। हाँ चलो ठीक है हजरत, है करता हूँ फिर बाद में बात। जी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, आपने ये पूरी ऑडियो मुलाहिजा फरमाई, बताइए आपने क्या फ़ैसला किया। कमेंट में भी ज़रूर बता दें कि आपने इस ऑडियो से क्या सीखा। ये देवबंदी शैतान अपने बुज़ुर्गों के हर कमाल को तस्लीम कर लेते हैं, ये उस कमाल को भी तस्लीम करते हैं जिसका दावा कुरान पाक से करते हैं, जिसकी दलील कुरान पाक से देते हैं। मगर जब हम ये कहते हैं कि तुम्हारे बुज़ुर्ग ये कैसे जान गए, जब अल्लाह ताला ने ये इल्म अपने किसी नबी को नहीं दिया, किसी वली को नहीं दिया, तो फिर ये तुम्हारे बुज़ुर्ग कैसे जो है जान गए। तो फिर कहते हैं कि हम वलियों की करामत के कायल हैं, वलियों की करामत के मुनकिर नहीं हैं। तो जब तुम लोग वलियों की करामत के कायल हो, मुनकिर नहीं हो, तो फिर नबी के मौजज़ात के भी तो मुनकिर नहीं होना चाहिए ना। नबी का मौजज़ा बड़ा है या वलियों की विलायत, वलियों की करामत है? भाई जो चीज़ नबी को हासिल नहीं है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने नबियों को अता नहीं की, तो वलियों को कैसे दे दी? है ना सोचने की बात। बस फैसला आपको करना है मुसलमानों। सोनी शान है आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी। दोस्तों, रद्द देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।